Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a method of definite integration as a limit of a sum, जिसमें हम इलस्ट्रेशन 26 समझेंगे। ध्यान से दोस्तों, illustration number 26 from integration from 0 to 2 e raised to x dx। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर डिसाइड क्या करना है। ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सबसे पहले हम देखेंगे ए यहाँ पर कितना है तो 0 है। बी मतलब अपर लिमिट वो है 2 एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू एक्स एंड लेंथ ऑफ सब इंटरवल एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपन एन 2 minus 0 which is 2 upon n। According to the definition, integration I is equal to b minus a limit n tends to infinity 1 upon n f of a plus f of a plus h f of a plus 2h and so on f of a plus n minus 1 into h। b minus a means 2, limit n tends to infinity 1 upon n, a means 0, 0 plus h, h means 2 by n, f of 0, h means 2 by n, so it become 4 upon n, 6 upon n and so on, f of 2 into n minus 1 upon n। Limit n tends to infinity 1 upon n, f of 0 means f of x means e raised to x, now x is replaced by 0, e raised to 0, e raised to 2 by n, e raised to 4 by n and so on, e raised to 2 into n minus 1 upon n। See, this is the geometric progression. In this progression, first term denoted by a which is e raised to 0, ratio common ratio e raised to 2 by n and formula of summation Sn a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, 2 into limit n tends to infinity 1 upon n, a means e raised to 0, r means e raised to 2 by n raised to n minus 1 upon e raised to 2 by n minus 1। Here nth root and n power cancel. What is remaining here? Remaining is limit n tends to infinity 2 upon n e square minus 1 e raised to 2 by n minus 1। To make it formula, we require 2 by n, so divide 2 by n and multiply 2 by n। From continuity and the limits, we know very well limit n tends to infinity e raised to 1 upon n minus 1 upon 1 upon n, which is
log e to the base e. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसकी जो वैल्यू होगी, सबसे पहले 2/n कैंसल, e स्क्वायर माइनस 1 अपन log e टू द बेस e, ये 1 वैल्यू होगी. सो फाइनल इंटीग्रेशन इज e स्क्वायर माइनस 1. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम से क्लियर? ओके. नाउ फ्रॉम एक्सरसाइज 7.8 एग्जाम्पल नंबर 5 डू योर सेल्फ. आप खुद प्रैक्टिस करें. एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करेंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x प्लस e रेज टू 2x dx. आप देख सकते हैं यहां पर एक पोलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रहा है. तो दोनों को हम सेपरेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं. उसे हम सेपरेट तो करेंगे लेकिन आगे बढ़कर देखते हैं. चलो सबसे पहले हम क्या डिनोट करेंगे यहां पर. v रिक्वायर्ड a मीन्स लोअर लिमिट, v रिक्वायर्ड b अपर लिमिट. फंक्शन f of x प्लस e रेज टू 2x एंड लेंथ ऑफ सब इंटरवल h इज इक्वल टू b माइनस a अपन n 4 माइनस 0 अपन n. याद रखना है ये. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस a अपन n मीन्स 4 अपन n. f of a plus h, f of a means 0 plus 2h and so on, f of 0 plus n minus 1 into h. क्लियर दोस्तों? ध्यान से देखिएगा. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 4 upon n. See here x is replaced by limit 0, value 0. So here we will get 0 plus e raised to 0. ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा. दूसरा टर्म होगा 0 plus h and h is equal to 4 by n. So 4 by n plus e raised to 4 into 2 8 by n. सेकेंड स्टेप में h मीन्स 4 by n, तो 4 into 2 8 by n plus e raised to 8 e raised to 2x and x is equal to 2h means 4h. तो 4 into 4 16 by n अप टू एंड तक. अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म में से 4 by n we separate polynomial and exponential. 0 plus 4 by n, 8 by n and so on, e raised to 0, e raised to 8 by n, e raised to 16 by n. By this way, limit n tends to infinity 4 upon n, 4 by n common, 1 plus 2 plus 3. Similarly, e raised to 0, e raised to 8 by n, e raised to 16 by n. ये जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और यहाँ पर 1 to n में सिग्मा एन की हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है.
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 अपॉन एन इंटू 4 अपॉन एन, सिग्मा n की वैल्यू है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहां पर ये वैल्यू होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a मीन्स e रेस टू 0, r रेस टू n, e रेस टू 8 बाई n, जो होगा कॉमन रेशियो जिसकी पावर होगी n माइनस 1 डिवाइड बाई e रेस टू 8 बाई n माइनस 1। सी n कैंसल, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 इंटू 4 16 अपॉन n कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, remaining is 1 plus 1 upon n divided by 2 as it is, into 4 by n e raised to 0 means 1 into n cancel, e raised to 8 minus 1 upon e raised to 8 by n minus 1। to make it formula हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पावर है यही पावर से हम टर्म को डिवाइड करेंगे 8 बाई एन से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाई एन से। ओके, ये हमारा यहां का पूरा टर्म होगा। सी एन कैंसल, 2 8 जा 16। अब ध्यान से देखते हैं दोनों में कॉमन फॉर्मूला, तो यहां पर वैल्यू होगी 8 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन n की वैल्यू होगी 0 प्लस, यहां से ध्यान से देखिए n कैंसिल होगा एंड 4 2 जा 8, सो हियर वी हैव 1 बाई 2 e रेज टू 8 माइनस 1 अपन log e टू द बेस e। ये जो टर्म है इसकी फॉर्मूला ये होगी log e टू द बेस e, जिसकी वैल्यू होगी 1, सो 8 प्लस e रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 16 प्लस e रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, फाइनल आंसर e रेज टू 8 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? एकदम से क्लियर? ओके, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में ये जो मेथड है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट्स ऑफ सम, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही लंबी मेथड है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतनी, और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7, एग्जाम्पल नंबर 40। ध्यान से देखिए, इवेल्युएट फ्रॉम 0 to 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, e raised to 2 minus 3x dx as the limit of a sum। देखिए दोस्तों, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, फंक्शन f of x is equal to exponential function and length of sub interval b minus a upon n। b minus a means 1 minus 0। according to the definition, limit n tends to infinity, b minus a upon n means 1 upon n, f of 0 plus h, f of 0 plus 2h and so on, f of n minus 1 h। limit n tends to infinity 1 upon n, f of 0 means e raised to 2 minus 0, e raised to 2 minus, see x means h and h means 1 upon n, so 3 upon n, e raised to 2 minus 6 upon n, e raised to 2 minus 9 upon n,
and so on. Limit n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन n ई स्क्वायर, यहां पर देखिए ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 3 बाई एन, ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 6 बाई एन, ई रेज टू 2 इंटू ई रेज टू माइनस 9 अपॉन एन एंड सो ऑन. इन सभी टर्म में ई रेज टू 2 कॉमन वैल्यू है, तो ई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट एंड कॉमन 1 अपॉन एन, remaining term is 1. 1 means e raised to 0, e raised to minus 3 by n, e raised to minus 6 by n, e raised to minus 9 by n and so on. हमें दिख रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, तो e raised to minus 3 by n होगा, ये होगा कॉमन रेशियो. सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Sn, सबसे पहले ई स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन n, फर्स्ट टर्म इज e रेज टू 0 एंड द फॉर्मूला क्या होगा यहां पर e रेज टू माइनस 3 बाई n, जिसकी पावर होगी n माइनस 1 अपॉन e रेज टू माइनस 3 अपॉन n माइनस 1. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके. नाउ ई स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन n, e रेज टू 0 मीन्स 1, n कैंसल, e रेज टू माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज टू माइनस 3 बाई n माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बाई n मल्टी डिवाइड करेंगे, माइनस 3 बाई n से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी log e टू द बेस e, यहां पर n कैंसल, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन e क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3. सो फाइनली वी विल गेट e स्क्वायर 1 माइनस e क्यूब अपॉन माइनस 3 e क्यूब, बिकॉज log e टू द बेस e 1 वैल्यू होगी. क्लियर दोस्तों? ओके. ई स्क्वायर यहां से कैंसिल रहेगा, माइनस कॉमन, फाइनल आंसर इज e क्यूब माइनस 1 अपॉन 3e, ये होगा फाइनल रिजल्ट. आप देख सकते हैं दोस्तों, माइनस यहां से कॉमन लेंगे, ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ई स्क्वायर तक कैंसल, सो e क्यूब माइनस 1 अपॉन 3e. तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएंगे बाय यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम. क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. आशा रखता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. यदि नहीं भी आया है तो आप दोबारा वीडियो देखें और दोबारा प्रैक्टिस करें. थैंक यू, धन्यवाद.